The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited. Respected Principal Madam, distinguished guest Mr. Ankur Bhaduri, staff and student of Department of Commerce, a very good morning to you all. I, Dr. Arpita Ghosh, take this opportunity to welcome you all to the third day of ComEduFest 2021 on the theme From Teens to Tycoons. Today, we are privileged to have amongst us Mr. Ankur Bhaduri, who will deliver online a special lecture on the topic Prototype Validation, Converting Prototype into Startup. I'm thrilled to express my words on such a momentous occasion about Mr. Bhaduri. It's an honor for me to introduce the guest to you all students and the principal madam. Ankur Bhaduri did his high school from Bethany Convent School, Naini in the year 2005, intermediate from KV Naini 2007. He's a BTech Electricals and Electronics from UCR 2008 to 2012 batch. And at present, he is manager, Central Electrical Department, Steel Authority of India Limited, Asansol, West Bengal. The amount of dedication and hard work he gives towards his work is truly commendable. He is certified Green Belt in Six Sigma, lead auditor of ISO standards for quality management system,
occupational health and safety management system, environment management system. He made his ideas into life with a lot of efforts. Various challenges and difficulties came across his path. To go into a bit detail, he lost his father while he was a student in the engineering. However, the crucial deadlines and on-spot solutions to the problems never led him to compromise the quality of his work, and he made sure that his work delivery was always on time. With his firm persistence, all the problems were easy for him to solve. He was able to overcome all the obstacles which came along his way. He was always sure that his hard work will surely one day give him all the fruitful results and will enhance his life. He has authored and won many management case studies organized by National Human Resource Department. He is faculty for Quality Circle, 5S, Industrial Electrical Practices, Behavior-Based Safety, ISO System Standards. He is the winner of CEO Excellence Award, and he was among the top 10 finalists of Intel India Embedded Challenge with innovative product, Smart Transmission Remote Assessing Network. He is also certified external examiner for the West Bengal Technical University. It's not just for himself, but he believes for everybody that if you work hard, you will get the results one day for sure. He has philanthropic contribution in Asansol. He runs a free online coaching for various one-day competitive exams for graduation students. Associated with various social activities like blood donation, rural medical camps, village sanitation camps, etc. And as an icing on the cake, at the mere age of 31, he is pursuing his studies still, doing PhD from Indian School of Mining, Dhanbad. I welcome you. I request our principal madam to formally welcome Ankur to our, I'm so sorry, he's our guest of honor, and I'm calling him Ankur because he was one of my students. So slip of tongue, very sorry. So I request our principal madam to welcome our guest, Mr. Ankur Bhaduri, and present a memento to him. And I request Sangeeta madam to accept the memento on behalf of Ankur. Ankita, okay. मिस्टर अंकुर, आपके लिए, आप यहाँ होते ये मान के आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, पर आप जहाँ भी हैं, ये आपके लिए हम लोगों की ओर से सम्मान स्वरूप। अभी डॉक्टर अर्पिता घोष ने श्री अंकुर भादुरी के विषय में जो बताया, उसको सुनकर के अर्पिता के लिए भी बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने जिसे पढ़ाया था किसी स्टेज पर, वो आगे चल के इतना होनहार, कहते हैं एक अंकुर था, एक छोटा पौधा था, जिस स्टेज में भी पढ़ाया होगा, और उसके बाद अब इतना अच्छा पुष्पित और पल्लवित एक अच्छा यंग वृक्ष है, प्रोफेशनल जगत जो है उसके फील्ड में। और बहुत सारी बातें
अंकुर जी के बारे में उन्होंने कही, पर मेरा विशेष ध्यान उन बातों पे ज्यादा गया जिसमें उनके इनोवेशन, उनके आइडियाज, उनके नए-नए अप्रोचेस बताए गए थे। और मैं वास्तव में अंकुर जी आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इनोवेटिव वर्क करने की सोची और इतना अच्छा आपने, इतने अच्छे अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस आपके नाम पर हैं और आप उसी दिशा में नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर की दिशा में भी बहुत काम कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी का एक एहसास होता है और मैं आपको बहुत-बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करती हूँ कि आपने इतने कम उम्र में इतना अचीव किया है। और आज तो आप हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट के रूप में आपकी कुछ स्क्रीन शेयरिंग की जो झलक हमने पहले देखी है, उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि आगे आप कितना अच्छा बोलने वाले हैं और हम पूरा सुनेंगे भी आपके साथ। Thank you so much for giving your consent to deliver lecture on such a fruitful topic to our students. और मैं यही नहीं कहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही, हम कहीं कहीं हम लोग भी उसी तरह स्टूडेंट हैं जो अननोन फील्ड है उसके उस बारे में हम लोग भी उसी तरह से इग्नोरेंट और स्टूडेंट हैं आपके। तो very warm welcome on behalf of our institution and very much thanks for your kind consent to deliver this lecture. I now request Ankur to deliver the lecture, and the stage is all yours, Ankur. You may please go ahead. Good morning, ma'am. Good morning, Principal, ma'am. Arpita, ma'am. Thank you for giving me an opportunity to share my views on this very much relevant topic and very much apt to the world. Thank you, ma'am, for such a wide description about my profile. It was all your blessings and all whatever we did and whatever we will do in the future because of all our teachers. Thank you. So, shall I share my screen? Yeah, sure. Welcome, students. As I can see, 30 participants are here. So, we'll move next 1 hour for the topic prototype validation, converting prototypes into a startup. So, that's a very much as our Prime Minister Narendra Modi is really stressing upon the topic of Atmanirbhar Bharat. So this is the need of the hour where we need to create a series of entrepreneurs and who can not only create a niche on the service sector, as India leads in the service sector, we also need to develop something for for the Made in India initiative. As our Prime Minister dreams कि हाँ हम देश में बनाए कुछ और देश में ही सब कुछ बनाए. So for that a series of initiatives have been taken to develop our entrepreneurs and the budding innovators. So this is me. I'm Ankur Bhaduri on the journey of Teens to Tycoon, welcoming all. You can find me on my LinkedIn and this is my contact number. So before we start, somebody, an anonymous once said, if a picture is worth thousands of words, a prototype is worth thousands of meetings. Yes, अगर आपका initial product अच्छा है, a prototype is basically a stage between your idea when you have something more than an idea and less than a commercial product. This is your prototype. और उस प्रोटोटाइप को आप कैसे डेवलप करेंगे और उस प्रोटोटाइप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कैसे चेंज करेंगे, तो वी कैन डिस्कस ऑन दिस. So can I see my audience once? Okay, who are the students? Are the students available here only? The students are online, Ankur.
Okay, ma'am. Online. Okay. So can we mute or unmute them during the course of presentation? They are already they are muted. Okay. Can we unmute them during the course of Yeah, presentation? sure, sure. Okay, ma'am. So we have a lot of people. Can anybody say what is a prototype or what is a startup or anything? Students, you may just put up your hand, raise your hand. Sir is asking you, do you have any idea about what is a prototype Or a startup? or a startup? Yes, Ayushi ma'am. Yes, Ayushi Singh. You may just unmute yourself and ask the question, please. Good morning, everyone. Morning. I don't know the meaning of prototype, but I know the startup. Startup is anything which we can start uh, for starting. Okay. Acha, what do you want to do a startup? Anything, just like a small business. Small business. Okay. अच्छा, how many among the house do you want to do startup? आप में से कौन कौन है जो इच्छुक है एक स्टार्टअप करने के लिए? So, me. Please raise your hand. Let me count the entrepreneurs of this house. Okay, Shivani is there. Only we have two entrepreneurs till now, Ayushi and Shivani. Any more? जिनको स्टार्टअप करना है? We have lots of people. So this session is going to be a very interesting one. Students, you also gear up. Because this will be a interactive session. We are just physically apart, but connected through the technology. So we only have two people who want to do a startup. No issues. Let's see at the end of the session how many more we can think of. So basically, this is a definition. This is the definition launched by the Government of India in 2016 at Vigyan Bhavan. Our Honorable Prime Minister basically said this: कि a startup is basically a new risky business which has intent to grow large. It can be an individual or a series of entrepreneurs. Okay. This has basically two main terms. First is risky business, and second is grow large. So both the terms I'll explain. First one is a risky business. Yes, it's a risky business. It is worth mentioning that more than 1,000 startups are registered every year in our country, and 94% of the startups fail. That's a fact that आप 100 में से 6 ही स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, ये अभी तक का ट्रेंड कह रहा है. तो that it's a very high risky business because it might be there कि a lot of capital gets involved and it gets failed. ठीक है. But further it is saying it intends to grow larger. Yes, definitely we can see there are many examples. First, you can discuss this Baiju. I hope everybody knows Baiju. I have Adiba, Akansha. Akansha, can you say me what is Baiju? Yes, sir. Baizu is a coaching institution. Definitely. We take the service of NEET, JEE, IAS. It's a basically online coaching institution, okay, which provides you coaching, which provides you coaching from a distance from some remote places. You don't know your faculty, you don't know who is the institution, but through online platform you get connected. Okay. So Baiju has grown like anything in last 5 years. It was around 2016-17 it was launched, and today Baiju is sponsoring Indian cricket team. Similarly, 8 years back we had Paytm, okay, Paytm, Freecharge and all. So within 8 or 10 years they are converting into huge volumes. And recently last year Ratan Tata invested 3,000 crore rupees in Paytm. So this is the power of startup. And because of this, startup has means huge potential to grow. At the same time, huge potential to fail.
So next is why to do a startup. I will definitely ask this question to the persons who want to do a startup. I think I had two people, na? Akansha? Ayushi Singh was one. Ayushi was there. Yes, sorry. Ayushi, why do you want to do a startup? Sir, because earning money and to do anything in life independent. Okay, to have an independent, to do something independently. Yes, sir. Okay. Any more reasons? I can see more names are there. Example last. Akanksha Pandey. Akanksha Pandey, you may answer. Yes, सर मेनली स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं कि हम जॉब नहीं करना चाहते हैं। पहला तो मेन पॉइंट, दूसरा प्रॉफिट होता है जितना हम महीने में फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो मिनिमम 15-20 Okay, मतलब I think so. Akanksha is not connected properly. No issues. Can we have from the Vijay, Tanya, Tanushka, Tanu, Supriya, anybody? Anybody from the? Can we have Tanu or Tanushka? Anybody? If you are there, मैम हम स्टार्टअप क्यों करेंगे? Why to do a startup? हाँ तानिया बोलिए. सर मिनिमम 14 to 15,000 अप्रोक्सीमेटली हमको मिलता है, बट अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं खुद से तो जो होता है करते तो हमसे स्टार्टिंग में थोड़ा हमने लॉस भी होगा, बट हमें प्रॉफिट भी होता है। तो हम जितनी सैलरी हम डेली जो बिजनेस ओके मैम. तो बेसिकली अभी तक कंसर्न जो फोरम कह रहा है कि बेसिकली इट इज जस्ट टू इट हैज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग एंड इट विल मेक यू इंडिपेंडेंट. ठीक है, यही दो चीज है. तो एक चीज देयर विल बी बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स फॉर चूजिंग अ स्टार्टअप. जो आप सबने बोला कि यू आर योर ओन बॉस, आप आत्मनिर्भर हैं, आप खुद पे डिपेंडेंट है, आपको किसी की बॉस, किसी की चाटुकारिता नहीं करनी पड़ेगी, किसी को सुनना नहीं पड़ेगा. दिस इज द बेनिफिट. बट देयर आर कॉन्स आल्सो, दैट्स अ बिगर पार्ट कि स्टार्टअप्स मेक यू वर्क, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आपको लॉन्च कराना है, तो यू हैव टू स्लॉग एनी लाइक एनीथिंग. आपको बहुत काम करना है. इनफैक्ट एक एग्जांपल भी है, जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो जॉब देती है स्टार्टअप कंपनीज जो है, they make their people work more than 15 hours. It is a fact which is coming from from the surveys कि startups आपको do they pay good but they make you slog for 15-16 hours per day. ये एक लॉस है. सेकेंड वन, द प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि आप स्टार्टअप है, आप ही हेड है अपने कंपनी के, देयर इज नोबडी टू गाइड. दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर हाई फेलियर्स ऑफ स्टार्टअप. You are unsure about your future, क्या हो सकता है, because market can change like anything. ठीक है, and there is a fear of failure. ये कोविड के आ जाने की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो गए बिकॉज क्रैश ऑफ द बिजनेस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इन सब की वजह से ये हुआ था. ठीक है, बट कोविड एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया था. ठीक है, जो बेसिकली सबसे बड़ा इंटेंट है स्टार्टअप का. पहला कि जब आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली स्टार्टअप करता क्या है, यू आर एड्रेसिंग अ रिक्वायरमेंट and to launch anything which is innovative, you are first of all addressing a requirement. You are before that you are creating a requirement. These two are very important things to be noted. जैसे आज से 1 साल पहले, ये कोविड आने से पहले
we hardly knew about Zoom, Cisco, WebEx, or any such online meeting platforms. Although they existed few years back also, but they were not popular. Today, almost everybody who is associated with education, training, and all, or industry, is everybody is familiar about these terms. So, because COVID created a requirement, similarly, uh, Ola, Uber, these created you a requirement. They provided you a platform wherein you can access your transportation. IRCTC created a platform. You don't need to go to the stations for reservations. So first of all, you need to address a requirement. ठीक है? There is some gap or stop gap है, कुछ available नहीं है market में, या कोई एक necessity है which is not getting fulfilled, and that necessity is fulfilled through a startup. जैसे सर अभी सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारा है कि लास्ट ईयर से अभी तक में नेटफ्लिक्स आई होप एवरीबॉडी नोज नेटफ्लिक्स हॉटस्टार, इन सब का वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इतना ग्रो कर गया है। क्योंकि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, ये बिजनेस नहीं थे उसके पहले उतना स्ट्रांगली, लेकिन ये कोविड की वजह से ये सिचुएशन आया कि यस, people are more into screens, they are more into house, so this created a requirement, and this requirement was addressed by somebody. ठीक है? Similarly, Baiju got this opportunity. ठीक है? वो एक रिक्वायरमेंट आया था, एक मार्केट में गैप आया था, Baiju got this opportunity, और today Baiju is like anything. उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सेस किया, उसमें कंटेंट शेयरिंग किया। इसके बेनिफिट क्या हो गया कि यू कैन एक्सेस अ टीचर। ठीक है, सपोज आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे थे, ठीक है, एंड दैट सर गॉट ट्रांसफर्ड टू समबडी सम एल्स प्लेस। तो आज से शायद 4 साल 5 साल पहले हम ये सोच नहीं सकते थे कि यस, नाउ अगर सर चले गए यहाँ से या मैम चली गई यहाँ से, वी विल बी अगेन in contact, and we could again get an opportunity to get to be taught from him or her. But today we have this option. So this requirement was addressed through these online platforms. You need to find a requirement and address a requirement. For example, 1mg के बारे में कोई जानता है? Anybody among the participants 1mg के बारे में कोई सुना है? Anybody knowing about 1mg? 1mg is an online medicine delivery company. One mg is an online medicine delivery company. उसपे आप अपना मेडिसिन बुक कर सकते हैं, इनफैक्ट अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं. They will deliver the medicines at your doorstep, further giving you discount. ठीक है, they also have an opportunity. जैसे अभी कुछ दिन पहले तक हम सुनते थे कि जेनेरिक मेडिसिन लेना चाहिए हमें, जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बोला जाता है, जेनेरिक मेडिसिन आर चीप और सस्ता है, ये लेना चाहिए, बट वी डोंट हैव दैट एक्सेस कि हाँ हमको उसका केमिकल नेम पता हो या सॉल्ट का फॉर्मूला पता हो, जिससे हम कॉमन मैन के पास ये एक्सेस नहीं थी. ये आपको अपॉर्चुनिटी 1mg प्रोवाइड किया, दवाई ले लो प्रोवाइड किया. इसमें आपको खाली आपका जो कमर्शियल नेम है दवा का डालेंगे, यू विल गेट द केमिकल कॉम्पोजिशन. So these opportunities, these requirements were addressed by the startup. इसीलिए ये कारण था startups का इतना launch करना. Why the startups got so popularized is because they started addressing the requirements. Market में requirement create हुए and they are addressing those requirements. And this is basically why government is focusing on this. So next one is what is the prototype? Prototype is what I again said कि it's a stage between when your idea is not completed, when you have completed your idea and you are yet to launch that idea into a successful product. ठीक है, there are some predecessors of prototype. Basically design thinking बोल के concept है. Design thinking was launched by Kido. ठीक है, टिम ब्राउन को बोला जाता है. टिम ब्राउन is the CEO of Kido, and उन्होंने डिजाइन थिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है. We'll discuss that topic. तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटोटाइप बनता है, प्रोटोटाइप बेसिकली 4 स्टेजेस से होके जाता है. सबसे पहले आपका एक आइडिया होता है. ठीक है, आइडिया होता है कि आपको एक बनाना क्या है, आपको
मतलब क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग है आप क्या बनाना चाहते हो, देन यू डिफाइन कि आपको कैसे उसको बनाना है, ठीक है। सपोज आई वांट टू क्रिएट, सपोज सबसे पहले तो आता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। सपोज गर्मी का दिन है, ठीक है, और 40 डिग्री टेम्परेचर और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे पे करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, गर्मी का दिन है और मुझे पता है कि अगले दिन मेरा पावर चला जाने वाला है अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करूँ। तो माय रिक्वायरमेंट इज, पहला रिक्वायरमेंट आया कि यस मुझे ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मुझे बाहर भी ना जाना पड़े, उसके लिए मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व है, मैं घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकूं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके लिए क्या है कि प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिचार्ज का जो आजकल यूपीपीसीएल शुरू किया है, ठीक है, ये हुआ। देन उस ये था रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को एक आइडिया में क्रिएट किया कि यस कि इसको एड्रेस करें। देन आपको एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करनी है। तो हमारे गर्मी के दिन का प्रॉब्लम क्या क्या है, पहला तो हमको जाना पड़ेगा वहां पे, तो आई डोंट वांट टू गो, तो आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिमोटली। सेकंड थिंग, आई नीड अ प्लेटफॉर्म कि जिसके थ्रू आई कैन एड्रेस दिस, आई कैन पे द बिल, ठीक है। थर्ड, आई नीड अ पेमेंट पोर्टल कि जिसके जैसे हमारा ये है आपका, आप अगर एटीएम कार्ड यूज करते हैं, एटीएम कार्ड में देखिए लिखा होगा भीम या यूपीआई, ये आपका मैस्ट्रो या वीजा ये लिखा रहता है, तो ये होता है पेमेंट पोर्टल। तो आपको एक पेमेंट पोर्टल चाहिए। तो इस डिफाइन के स्टेज में आप डिफाइन करते हो कि आपको आइडिया को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या 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 चाहिए, ठीक। देन यू उसके बाद उसको फॉर्मुलेट करते हो, ठीक है, फॉर्मुलेट करते हो, देन यू रीचेक एंड फाइनल देन यू रीचेक कि आपका आप जो रिक्वायरमेंट सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग बनाने, तब आपका आता है प्रोटोटाइप, ठीक है। तो प्रोटोटाइप के बारे में इन्होंने, टिम ब्राउन ने बोला था कि दे स्लो अस डाउन टू स्पीड अस अप। By taking the time to prototype our ideas, we avoid costly mistakes such as becoming too complex too early and sticking with a weak idea for too long. We'll discuss this again. So before that, तो prototype का एक crude definition जो है, it's a concrete representation of the model before the release of a product, built to test a concept or process or to act as a thing to be replicated or learned from. Can I expect any participant among us? Shruti दीदी, आप अनम्यूट करेंगी? प्रोटोटाइप का ये डेफिनेशन आपको कितना समझ में आया? Shruti, can I hear you? Shruti और श्रेया? और एनीबडी, कोई भी बोल सकता है अगर कोई है तो। एनीबडी, प्रोटोटाइप का डेफिनेशन? Students, just don't be mute spectators. Kindly respond. We want an interactive session, ma'am. Yes, Janvi. Yes, sir. Sir, first of all, thank you so much for giving me opportunity. Ma'am, sir, am I audible? Yeah, you are audible, totally audible. Okay, sir. Sir, प्रोटोटाइप मींस फॉर्मलाइजेशन से लेकर के जहां हमने जो सोचा, हमें स्टार्टअप के लिए जो सोचा, वहां से लेकर के हम उसको किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, इस प्रोसेस के बीच में हम जो मॉडल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक तरह से प्रोटोटाइप कह सकते हैं, वो प्रोटोटाइप कह सकते हैं मे बी। आप एक आइडिया को मॉडल बना रहे हैं, फिजिकल बिल्ड दे रहे हैं, ठीक है, अगर Yes, आपका प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ प्रोटोटाइप। देन यू टेस्ट अ प्रोटोटाइप, ठीक है, इट्स बेसिकली अ फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ योर आइडिया, ठीक है। यस सर। गिव मी एन एग्जांपल। नो आइडिया सर। अच्छा, कोई बात नहीं। एनीबडी, कोई एक प्रोटोटाइप का एग्जांपल दे सकता है? कोई भी?
सबसे बड़ा सर एग्जाम्पल जोमेटो बोल सकते हैं मैम, जोमेटो तो प्रोडक्ट हो गया ना। अच्छा, अभी कौन बोला था जोमेटो बोल सकते हैं? सर जोमेटो बोल सकते हैं, एक प्रोटोटाइप है। मैम जोमेटो प्रोडक्ट है, प्रोटोटाइप नहीं। अच्छा, आप अभी किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं? सर जूम ऐप। जूम पे। जूम कितने साल से आप जानती हैं जूम के बारे में? सर अप्रोक्सीमेटली 2 years। ओके, ठीक है। तो Yes, sir. जूम का पता है, जूम खुद एक प्रोटोटाइप था। जूम, इफ यू टॉक अबाउट जूम, लास्ट जूम आज से 6 साल पहले अगर आप चले जाओ, ठीक है, जूम वाज यूज्ड फॉर आईएसडी कॉलिंग। ठीक है, आईएसडी वीडियो कॉल का फैसिलिटी जूम प्रोवाइड करता था। दे यूज्ड टू चार्ज यू, ठीक है, and that was a prototype stage wherein Zoom was planning to launch a meeting portal, जो कि आज है, ठीक है, जो आज देख रहे हो। दिस वाज अ फाइनल प्रोडक्ट जो Zoom उस समय करता था। आज से 6 और 8 years बैक Zoom used to provide you an ISD portal। मतलब आपको जब हम इंटरनेशनल कॉल नहीं कर पाते थे, जब हमारे फोन ISD का जो प्रॉब्लम था, जब व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था, that time Zoom आपको एक वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, that was chargeable in fact, ठीक है। that was one of the prototype, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रोटोटाइप का। आपको याद है आज से 3-4 साल पहले तक, अभी तो शायद अभी भी कर रहा है इनफैक्ट, गूगल आपसे बोलता था कि आप यहाँ गए हो तो फोटो आप वो करो, अपलोड करो, इस जगह का एक्सपीरियंस बताओ, यहाँ पार्किंग है कि नहीं, ये सब आता था। Google Map. Yes, sir. In fact, yes, ma'am. Google Map is a good example. Google Map, initially Google Map was non-chargeable. आज भी मतलब हम लोग के लिए it's not chargeable, but Google Map is one of the example of a prototype. कि but these are all 2012 और 10 की बात है, जब Google Map was initially with that concept was launched. ठीक है, वो उस समय एक प्रोटोटाइप था which is now a commercial product. Google Map basically commercial इसलिए है कि जियो फेंसिंग भी प्रोवाइड करता है Google Map, कि आपकी अपनी लोकेशन क्या है, ये सारा जो है ट्रेसिंग करता है जो गूगल, ये इंफॉर्मेशन जो लेता है, दिस इज बीन सोल्ड टू द कंपनीज। जैसे वन ऑफ देम इज जोमेटो खरीदता है, ठीक है, ओला, उबर, जो भी जियो फेंसिंग रिलेटेड काम करती है, मतलब जिसको पीपल लोकेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे कंपनीज ये डेटा लेती हैं, ठीक है। तो टुडे इट इज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर दैट पीरियड प्रोटोटाइप। Akanksha Pandey, you want to say something? यस मैम। सर जो प्रोटोटाइप मीन्स यहाँ पे यही होगा सर, अभी भी मुझे इतना कंफर्म नहीं हो पाया है सर। प्रोटोटाइप मीन्स जो स्टार्टिंग के जो प्रोसेस होती, स्टार्टिंग का प्रोसेस मैम, जब आप आइडिया और प्रोडक्ट के बीच का स्टेज है प्रोटोटाइप, ठीक है। जैसे हमारे ये वैक्सीन, ठीक है, सर स्टार्टिंग के जो प्रोसेस होते हैं प्रोटोटाइप के, क्या वही है प्रोटोटाइप, उसी को कहते हैं? स्टार्टिंग नहीं मैम, आपके पास अगर कोई आइडिया है, अच्छा आप बिजनेस करना चाहती हैं, आप कुछ नया बनाना चाहती हैं मैम, सॉरी सर, अच्छा नॉट प्रॉपर लिसनिंग। नो इश्यूज मैम। ये जो कोविड-19 का जो वैक्सीन आया है ना, हम सबको पता है कोविड-19 का एक वैक्सीन आ गया है, अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। आज से 3 से 4 महीने पहले ये एक प्रोटोटाइप ही था, ठीक है, व्हेन इट वाज इन टेस्टिंग स्टेज, वो डेवलपिंग स्टेज में जब वो था, ठीक है। Then it got later formulated finally into a product which was tested at various laboratories, passed, and now today it is a final product. So prototype can be a tangible model, ठीक है, and it can be an intangible model. Tangible intangible का मतलब क्या होता है जानवी आपका? सर टैंजिबल Sir, which can be seen or touched. Okay, great, yes.
सर मैं आई यस मैम। सर टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते, एग्जाम्पल? ऐसे प्रोडक्ट्स को। सर फॉर एग्जांपल हम गुडविल ले लें, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट हो गया उसे हम टच कर सकते हैं, तो वो हमारा टेंजिबल हो जाएगा। जिसे नहीं टच कर पाएंगे उसे हम इनटेंजिबल कहेंगे। जू टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा? सर इनटेंजिबल होगा। इस ऐप को हम वर्क कर रहे हैं, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी बोलिए। सर आपने कहा जूम ऐप के लिए, तो क्या हमारा ये जूम ऐप अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो नहीं अभी भी हम प्रोटोटाइप में लिया जाएगा? नहीं, ये प्रोडक्ट है मैम, अभी प्रोडक्ट है। ये उस समय ये था जब वो उसको कर रहा, वो उस समय टेस्ट करता था, ये अब नहीं है ये। ओके सर। सर तो ये हमारा किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये हमारा अब प्रोडक्ट हो गया है? कुछ एक डेडलाइन होगी या बेसिक? यस मैम, जब कंपनी डिसाइड कर ले, जब आप डिसाइड कर ले कि इसको आप फाइनली कमर्शियली लॉन्च करेंगे, ठीक है, जब आप इसको बेचना शुरू कर दें तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे अभी भी बहुत सारा टेस्ट चलता रहता है। क्रेड के बारे में सुना है कोई? क्रेड, CRED, क्रेडिट कार्ड के बारे में सुने हो आप लोग? Which counts the credit score, like something like that. हाँ, ग्रेट, करेक्ट। तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पोर्टल है, वन ऑफ द पेमेंट पोर्टल विच इज लॉन्च्ड बाय अगेन पेटीएम, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पेटीएम, कुणाल शाह, उन्होंने लॉन्च किया था क्रेड, CRED। क्रेड एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है, एक पेमेंट पोर्टल है, ठीक है। तो ये भी एक समय, आज 1-1.5 साल पहले तक ये वही था, एक प्रोटोटाइप था। उसके बाद वो टेस्ट प्रोडक्ट बना। टेस्ट प्रोडक्ट के टाइम आपको कैशबैक वैशबैक सब प्रोवाइड करता था, ठीक है। फाइनली नाउ इट्स द प्रॉपर प्रोडक्ट। So basically the purpose of prototype is to have a tangible model of the solution, ठीक है। आप जो आइडिया बनाए थे उसका एक मॉडल बनाओ, ठीक है। Defining and solving all the problems for which you have created the idea, जो आइडिया आपने सोचा था, ठीक है। जैसे जो हमारी कोविड-19 की वैक्सीन का नाम क्या है? जो वैक्सीन था, जो बना है हमारी वैक्सीन, उसका पर्पस क्या? हाँ, कोवैक्सीन। हाँ, कोवैक्सीन नाम था। तो जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का पर्पस क्या है? Idea was to create a vaccine which can permanently prevent infection of any person from COVID-19 virus. यही पर this was the idea। तो इस requirement को उन्होंने एड्रेस करने के लिए कोवैक्सीन बनाई। कोवैक्सीन was tested thoroughly for 6 or 7 months at various stages, various physical conditions, और उसके अकॉर्डिंग मतलब उसका क्या इफेक्ट होता है उसको टेस्ट किया गया, एंड देन फाइनली इट इज दैट कॉन्सेप्ट और आइडिया हैज बीन लॉन्च्ड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। So basically you can consider the 3 types of prototypes. First one is a low fidelity prototype, ठीक है, a medium fidelity prototype and a high fi prototype. The first one you can say that आप low fidelity prototype पे बात करो तो you can use sticky notes, sketch paper, एक basic model chart paper पे आप draw करो कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं आप सबको एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आइडिया है, लेट्स फॉर्मुलेट अ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। इज द हाउस रेडी टू पार्टिसिपेट? मैं आपको सबको एक आइडिया देता हूँ, करें? Yes. Color changing. Yes, sir. I have an idea, Ankur, and I really want to go into it. And I have discussed in the class also. I want a color changing lipstick. Great. That will be my product. Yeah, definitely it can be a great product. So, I'll give you a rough sketch about it, as I have discussed in the class, that we'll have a remote, and when the girls will put the lipstick on and get out of their house, it will be a nude color. When they're on the road, it will be dark red. When they're in front of me, especially, it will again go to a nude form, and then it will be all remote controlled. I don't know how it will work out, but this is my low fidelity prototype. Okay, you want? No, ma'am, it's actually it's a high-fi prototype.
Okay, Hi-fi हो गया. so let's discuss more on this idea itself. ठीक है, so before that I'll tell you, ma'am, there are houses already. There are houses in South Korea and Japan which changes their color twice or thrice a day. So I just came across it yesterday itself. At night, I was scrolling something, so I came across that there's a product there. But I could not go into the details of it. And see, today coincidentally we are discussing this. Please go ahead with the students. अच्छा, तो can I have अंजलि, आंचल और अनुष्का, anybody इसमें बताएं कि इसमें requirement क्या है? What is the requirement? अंजलि, आंचल और अनुष्का, anybody? अच्छा, नीचे आरजू, आयुषी, हर्षिता, जानवी, मोनिका, anybody? Sir, please repeat the question. मैं पूछ रहा हूँ, मैम ने जो बोला उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? हम लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे, उससे पहले हमें सबसे पहला चीज है रिक्वायरमेंट क्या है, उस सारे आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, बोलिए रिक्वायरमेंट क्या है? Sir, may I? यस मैम. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिमोट बनाने के लिए, रिमोट और लिपस्टिक बनाने के लिए हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिससे हम बना सकते हैं. तो अलग अलग लिपस्टिक का जो फ्रेम वो क्वालिटी होती है कि अच्छी क्वालिटी की बनानी है, तो वो जो क्वालिटी मटेरियल से बनता है वो रॉ मटेरियल हमें चाहिए लिपस्टिक का. सेकेंड वन, हमें वो रिमोट बनाने के लिए कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो रिमोट बनाने के लिए रिमोट मशीन चाहिए, वो रॉ मटेरियल्स पूरे जो रिमोट को वर्क करेंगे. और इन सभी को अप्लाई करने के लिए अच्छा हमें वो चाहिए जो हमें अच्छे से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके. तो एक गाइडेंस की जरूरत होगी कि जो हमें बताए कि हाँ ऐसे कीजिए. एक प्रोफेशनल गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि सभी के पास वो नॉलेज नहीं होती जो हमने एक ही चीज में अप्लाई कर सकें. ग्रेट, थैंक यू मैम. अभी हम लोग उस लेवल के नहीं हुए हैं कि हमें कोई इस तरह की गाइडलाइन दे सके, तो हमें किसी को रखना होगा एक एज अ असिस्टेंट कि हमें वो गाइड कर सके कि आप इस तरह से वर्क करिए तो आपका ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली बन जाएगा और फिर लॉन्च कर सकेंगे हमसे. सबसे पहले हमें पेन और पेपर चाहिए. आप जैसे बोल रहे हैं ना, देखिए बेसिकली दिस इज how we do this is brainstorming. आप brainstorming, this is a brainstorming stage wherein you list out your ideas. आप जैसे बहुत कुछ बोली, ठीक है, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, बहुत सारा नहीं भी है, तो you list out all your ideas. ठीक है, आप सारे आइडियाज को लिस्ट आउट करो और जो भी क्रूड चल रहा है दिमाग में लिखते जाओ. ठीक है, गुड. पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले कि कैसे शेप में हमें उसे वो करना है इम्प्लीमेंट, ये सब. ओके, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. अच्छा, और कोई है बोलेगा? एनीबॉडी? सर विजन की जरूरत रहेगी हम लोग को. किसकी जरूरत रहेगी मैम? फिर से बोलिए. सर विजन विजन की जरूरत रहेगी. ओके, चलिए. रीजन आ रही है सर. ओके, ठीक है. और कोई? और कोई? सर हमें सर्वे भी करना. सर्वे भी, ये सब आपके बाद के स्टेजेस है. सर्वे करना पड़ेगा, ये बात की. सबसे पहले रिक्वायरमेंट. आपको रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आपका रिक्वायरमेंट है कलर चेंजिंग. ठीक है, कि आपको एक कलर चेंजिंग मटेरियल चाहिए कि जो आप उसको चेंज कर सके, मतलब एज पर आपका मूड आप उसको चेंज कर सके. सेकेंड, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको कहाँ पे लगा रहे हो? लिप्स पे लगा रहे हो. ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं यूज कर सकते. ठीक है, क्योंकि आप बॉडी के कांटेक्ट में हैं. ठीक है, आपको ऐसा लगाना है which shall not hamper your body. ठीक है, डायरेक्टली क्योंकि आपके स्किन के टच में है. ठीक है, आप लिप्स पे लगा रहे हो तो याद रखो आप उसका मतलब, क्योंकि लिपस्टिक अंदर भी जाती है बॉडी में, तो ये भी ध्यान रखना है. तो these are all your requirements you need to note down. ठीक है. सेकंड, मैम ने जो you need a color changing platform. ठीक है, ये चाहिए. तो इस पे ये these are all your low fidelity prototypes के बेसिक्स हो गए. ठीक है.
नेक्स्ट अब इसको हम और थोड़ा एनहांस करते हैं। आपने नैनो बॉट्स के बारे में सुना है सबने? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी एंड एवेन्यू कि आप एक्सप्लोर कर सकते। वहां कलर चेंजिंग मटेरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप चश्मा यूज करते हो, चश्मा कलर चेंज करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दोस केमिकल्स आर आल्सो मतलब बॉडी फ्रेंडली है। तो ऐसे और भी बहुत सारे नैनो टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर। देखिए बेसिकली स्टार्टअप वाले को सबसे पहला चीज जानते क्या चाहिए? ये दो बहुत बेसिक गुण चाहिए कि पहला तो यू शुड हैव एन लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी कि जैसे आप आई थिंक आई एम एड्रेसिंग ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes. तो पहला चीज तो आप सिर्फ वो बैलेंस शीट वाले लोग बच्चे नहीं हो, ठीक है, ये भूल जाओ। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो you need to learn, you are a technologist people because you are solving a requirement जिसमें आपको एक टेक्नोलॉजी एड्रेस करनी है। आपको सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में सुना है किसी ने? Yes, sir. गुड। अभी सत्यम कंप्यूटर महिंद्रा सत्यम बन गई। तो सत्यम कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड बाय रामलिंगा राजू, ठीक है। रामलिंगा राजू इज ये सत्यम कंप्यूटर्स वंस वाज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ आवर कंट्री, समझे? तो ये जो कंपनी है इट वाज लॉन्च्ड बाय अ बीकॉम पर्सन। उनकी सिर्फ वो क्वालिफिकेशन बीकॉम थी। तो आप लोगों में से कितने लोगों को कोडिंग आती है? Yes, sir. कोडिंग आता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड। Yes, sir. ये बात आप जान लो कि अगर आप स्टार्टअप करना है तो यू मस्ट बी ओपन टू एनीथिंग। अगर मुझे बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा तो जैसे मैम ने बोला अभी मेरे को कलर चेंजिंग लिपस्टिक बनाना है तो मुझे नैनो टेक्नोलॉजी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये रिक्वायरमेंट एड्रेस करना है। उसके बाद मुझे रिमोट चाहिए, तो रिमोट चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा वायरलेस के लिए। फिर थोड़ा सा बायोमेडिकल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूंगा वो आपका स्किन को हार्म ना करे, ठीक है। ये इतना तो मैं कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस जानना पड़ेगा, तब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तो यू मस्ट बी ओपन टू लर्न द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए काम करना है। आई एम अ मैनेजर इन सेल, ठीक है। मेरा यहाँ मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल का आदमी नहीं हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो पढ़ना है सब करना है। मेरा काम है यहाँ पे कि स्टील बेचना। तो स्टील मेरा अच्छा बने उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा आई हैव टू डू इट। सिमिलरली आपके स्टार्टअप के लिए आपको व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड यू नीड टू एड्रेस इट, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, द सेकंड वन इज मीडिया फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है। इसमें बेसिकली यू नीड अ वायर फ्रेम दैट कैन बी इन दिस स्टेज बेसिकली यू डिजाइन योर प्रोडक्ट, ठीक है, योर प्रोटोटाइप कि यू कॉन्सेप्चुअलाइज। आपने पहले स्टेज में कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया आपने प्रोटोटाइप को, नाउ यू डिजाइन इट, नाउ यू सिलेक्ट योर मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल सिलेक्ट करो कि क्या क्या चाहिए, वायरलेस के लिए क्या चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं आपको रिमोट से करना हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैम जैसे बोली रूम में आए तो बेस्ड ऑन हम एम्बिएंट टेम्परेचर हम कलर चेंज करा दें, ये रिक्वायरमेंट थी ना, है ना। हम क्लासरूम में बैठेंगे तो रूम थोड़ा ठंडा रहेगा, बाहर रहेंगे तो गर्म रहेगा, तो गर्म रहेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसके लिए कि जो कलर चेंज करते हैं। आपके पास बहुत से केमिकल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कलर चेंज करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को। तो इसके बेसिस पे आप मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो। देन बाकी आपको काम क्या है, लिपस्टिक का बेस बनाना है। बेस बनाने के बाद शेड्स क्रिएट करके उसको लॉन्च करना है, ठीक है। ये तो काफी आसानी से हम लोगों ने बात कर ली, बट इस पे हर एक स्टेप पे आपको हमें काम करना पड़ेगा टू लॉन्च दिस इनटू द फाइन प्रोडक्ट। हाँ, तो हम सेकंड स्टेज में बेसिकली वी सिलेक्ट आवर मटेरियल्स, वी आइडेंटिफाई कि कहाँ से वी गेट दीज रिसोर्सेज, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज में फाइनली वी क्रिएट अ मटेरियल, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेज में जो प्रोटोटाइप स्टेज में हमने फाइनली वो मटेरियल सिलेक्ट करके वो मटेरियल बना लिया, ठीक है। अब वो मटेरियल बन गया जब, तो आपका प्रोटोटाइप तो रेडी हो गया, ठीक है। प्रोटोटाइप जब आपका रेडी हो गया, नाउ यू नीड टू गो फॉर द टेस्टिंग स्टेज। तो उसको टेस्ट करना होगा, ठीक है। विल डिस्कस दैट, आता हूं पहले। तो बेसिकली प्रोटोटाइप बनाने में दो स्टेज होती है, एक प्री सीड स्टेज बोलते हैं और एक वैलिडेशन सीड होता है। इस स्टेज में आपको, अच्छा एंट्रेप्रेन्योर क्या होता है?
आपको डेफिनेटली ये डेफिनेशन सबको पता होगा. What is who is an entrepreneur? Kajal. Kajal, please unmute. Kajal, Yes, are you sir. there? Yes, Yes, sir. ma'am. Who is an entrepreneur? Sir, entrepreneur, the person who starts a business. Who has ideas? I think this is a book. You have learned this definition in your course. Somebody else please answer. Who is an entrepreneur? Ma'am, an entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risk and enjoying the rewards. Okay, ठीक है, thank you. For idea creation, say ideation stage, या pre-seed stage, what you say, in this you need to create. The entrepreneur has an idea and he is working on it, and in this stage itself, you need to start preparing for your funding, for your source of funding. But at idea stage, generally आपका fund तो बहुत कम ही लगता है, ठीक है. नेक्स्ट इज वैलिडेशन स्टेज. जब आपका आइडिया बन गया है, स्टार्टअप आपका प्रोटोटाइप हो गया, नाउ यू वांट टू डू अ पीओसी, दैट इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. जो आप बनाए हो, यू नीड टू टेस्ट कि हाउ वैलिड इज योर आइडिया, ठीक है. और इस स्टेज में यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल कस्टमर, या किस क्या टाइप ऑफ मार्केट होगा, और बाकी जो लेटेस्ट स्टेजेस है यू नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है. जब कोई स्टार्टअप करता है तो यू नीड फंड्स, ठीक है. पेटीएम के बारे में आपको पता है? एनीबॉडी? आपको याद होगा थोड़े दिन पहले तक, आज से 2-3 साल पहले तक पेटीएम बहुत कैशबैक देता था. Yes, sir. Yes, sir. किसने लिया है? सर मुझे आज तक नहीं मिला. सब तो खराब बात है, कोई बात नहीं. और गूगल पे यूज करते हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. गूगल पे कैशबैक देता है? Yes, sir. Points के द्वारा देता है. मिलता है. Yes, मजा sir. आता है, बीच में मिल जाता है कैशबैक, अच्छा लगता है. तो क्यों देता है ये कैशबैक? सर so that लोग ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करें. Attract करने के लिए customers को. उसके बाद Yes, क्या sir. होगा? सर ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे. सर अगर हम कोई भी ऐप को, या फिर जिससे हमें पहले फायदा मिलता है, अगर हम यूज करने लगते हैं तो हम उसके एडिक्टिव बन जाते हैं. तो जिससे अगर हम गूगल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जियो पहले हम यूज करते थे, पहले वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था उन्होंने, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने कॉस्ट भी बढ़ा दी है और हम लोग विदाउट इंटरनेट रह नहीं सकते हैं, वो एडिक्ट हो जाते हैं. तो इसलिए ज्यादा उन लोग को फायदा हो गया है. तो गूगल पे से क्या आप एडिक्ट हो जाएंगे? जियो का मान सकते हैं, गूगल पे से क्या आप एडिक्ट हो सकते हैं? Yes, sir. गूगल पे हम अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स मेनली Yes, sir. Cashless payments के लिए तो किसी को भी पेमेंट होती है. कोई भी चाहेगा कि कहाँ से वो बेसिक इंटेंशन होता है कैशबैक का. पहला तो ठीक बोले, अट्रैक्ट करने का. फर्स्ट इज कि मेक यू ईज विथ योर ऐप, ठीक है. गूगल पे जब आप यूज करोगे, आप अगर मैं आपको बोलूं मेरा प्रोडक्ट एक बार यूज करके टेस्ट करो, तो आप करोगे? नहीं करोगे, आपको कुछ देना पड़ेगा. पहला तो गूगल पे का एक रीजन ये है कि वो कैशबैक जब देता है, उसका रीजन है एक साथ वो क्राउड को अट्रैक्ट करता है. इतना सारा क्राउड अगर उसके ऊपर आएगा, वो अपने नेटवर्क का ट्रैफिक टेस्ट करता है कि मान लो एक साथ 1 करोड़ यूजर एक साथ उसका ऐप यूज कर रहे हैं एट अ टाइम. यू आर टेस्टिंग मतलब द कैपेसिटी ऑफ द ऐप, नेटवर्क ट्रैफिक, ये सब चीज चेक करते हैं. आपको याद होगा, आपको शायद याद नहीं होगा, फ्री चार्ज एक ऐप आया था, ठीक है, स्टार्टिंग में. तो फ्री चार्ज यूज टू गेट क्रैश्ड. ये उसका रेगुलर का प्रॉब्लम था, क्रैश हो जाता था. इनफैक्ट जियो क्रैश होता था जब जियो नया आया था. ये बेसिकली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे ये करते थे ये काम. तो एक साथ एक ट्रैफिक टेस्ट करते थे. इतना सारा ट्रैफिक को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है ये टेस्ट करता है. दूसरा, अपना कस्टमर बेस बढ़ाते हैं कि यस ये आपको ईज हो जाएगा. मतलब एक कस्टमर पे कि हाँ उनके पास इतना बड़ा स्ट्रेंथ है. आपका डेटा लेते हैं वो,
ठीक है, उनके पास इतने लोगों का एक डेटाबेस है, उन्हें पता है कि ये उनके पास जानवी है, अनुष्का है, सुप्रिया है जो इलाहाबाद से है, ठीक है, जो रेगुलरली बिग बाजार मैकडोनल्ड्स में जाके खाती हैं, उनको ये बात पता है, और ये बात वो जाके मैकडोनल्ड्स को बताते हैं कि देखो तुम्हारे पास ये 3 लोग आते हैं खाने, और वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो 20-21 साल की है, उनके लिए तुम अगली बार जब आएगा तो आर्चीज का गैलरी खोलना, उनके लिए तुम जाके उनकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना, ठीक है, उनको फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करना होगा, तुम उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, ठीक है। तो दीज डेटा, दे बैकअप डेटा वो प्रिपेयर करता है। थर्ड एक बहुत बड़ा रीजन है ये सारे कैशबैक फ्लैशबैक लॉन्च करने का, वो आप एक कस्टमर बेस हो गया, आप रेवेन्यू हो गया, मतलब एक रेवेन्यू इंक्रीज कराना हुआ, ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज कराना हो गया, कस्टमर बेस हो गया, क्रिएट करना हो गया। तो ये जो वो लोग करते हैं ये सारा कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, इसका एक लॉस भी आप सबको पता है कि ये बिजनेस लॉस में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सारा फंड वो फ्री में तो दे रहे हैं, उनको तो कुछ कमा नहीं पा रहा है, तो दे डेलिबरेटली क्रिएट लॉसेस। जैसे पेटीएम 3 साल तक लॉस में चला था, इनफैक्ट अभी भी उसके ऑपरेशन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये लॉस में भी बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये पैसा कैसे आता है, एंड सोर्स ऑफ फंडिंग वी विल कम टू नो। तो स्टार्टअप कैन रिक्वायर फंडिंग, डिपेंड्स अपॉन योर प्रपोजल कि किस स्केल और किस रेंज का प्रपोजल है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेसिकली स्टार्टअप जो भी करता है उसको अपने फंड्स अरेंज करने हैं। So these are the ways you can arrange your fund. First is crowdfunding. Crowdfunding is the yes, anybody? Crowdfunding is a way to arrange your funds from your acquaintance. अपने भाई भैया दीदी सब, इन सब से पैसा लेके अगर आप कुछ मतलब उनको इन्वॉल्व करो, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाओ, if they are interested they will fund, ठीक है। This is the easiest way to fund your product, but this adds a limited। अब जैसे ये थे आकाश अंबानी को एक स्टार्टअप लॉन्च करना था जिसका नाम था जियो। तो आकाश अंबानी अपने पापा के पास गए, पापा मेरे को 2 लाख करोड़ दे दो, तो पापा ने 2 लाख करोड़ दे दिया एंड जियो वाज लॉन्च्ड। So this was an example of crowdfunding, ठीक है। Second one is bootstrapping. Bootstrapping is the example wherein you fund your own startup, ठीक है, where you or your group of people fund your own startup. For example, Myntra.com. Myntra.com is an example of a bootstrapping startup. Uber, Ola, these are bootstrapping platforms, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग इसको कहते हैं जब आप खुद अपने स्टार्टअप को फंड करो या आपके को मेंबर्स मिलकर फंड करो। थर्ड वन इज वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट आर ऑल एक्सटर्नल पीपल, वो फंड करते हैं आपका, मतलब जैसे बेसिकली एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है म्यूचुअल फंड्स पे जो फंड करते हैं, जैसे फंड हाउसेस, दीज आर ऑल वेंचर कैपिटलिस्ट। ये बेसिकली देखते रहे, ये इधर दे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी पोटेंशियल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे रतन टाटा ने 3000 करोड़ रुपए पेटीएम में लगाया था, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। बट उसके बाद वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरली ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के बाद दे एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 30 और 40%, इस रेंज में तब ये इन्वेस्टमेंट होता है। लास्ट वन इज एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स जैसे नाम बताते हैं, ठीक है, दे आल्सो एक्सपेक्ट हाई इंटरेस्ट बट एज कंपेयर्ड टू द लेसर इन्वेस्टमेंट्स डन बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट। गूगल, अलीबाबा, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ, मतलब ये कंपनियां बनी है वेंचर एंड एंजल इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद। अच्छा, अलीबाबा क्या है पता है किसी को? Alibaba is a Chinese company. It's the world's biggest ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, पता है? Yes. तो Alibaba is launched by Jack Ma. It's some angel investors has invested, ठीक है। मोहनजीत जॉली बोल के एक बंदा है, आप गूगल में इसमें देखिएगा, आपको गूगल में मिल जाएंगे, लिंक्डइन में मिल जाएंगे ये, ठीक है। मोहनजीत जॉली, he is an angel investor.
ही लुक्स अप, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं स्टार्टअप्स के लिए, वो इन्वेस्ट करते हैं. इनफैक्ट ही वाज इंटरेस्टेड इन आवर स्टार्टअप इवन, जब हमें किए थे. विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो. ठीक है. तो मोहन, these are all angel investors. वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल कस्टमर वो इन्वेस्टर है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है. फेसबुक के बारे में कोई बताएगा? सबको यूज करता है फेसबुक. जर्नी ऑफ फेसबुक, एनीबॉडी? सर मार्क जुकरबर्ग. अच्छा, फेसबुक का प्रोटोटाइप पता है किसी को? मैं कोई एग्जांपल अभी ध्यान में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको. ठीक है. किसी ने सोशल नेटवर्क मूवी देखी है? सोशल नेटवर्किंग, प्लीज नोट नो करना. सर. सोशल नेटवर्किंग मूवी देखना सब कोई. ठीक है. Okay. सोशल नेटवर्क इज द मूवी एग्जैक्टली ऑन फेसबुक. ठीक है. मार्क जुकरबर्ग वाज अ स्टूडेंट इन हार्वर्ड. तो उन्होंने हार्वर्ड में लॉन्च हुई थी हार्वर्ड कनेक्शंस बोल के. ठीक है. हार्वर्ड कनेक्शन वाज अ पोर्टल लॉन्च फॉर कनेक्शन ऑफ ऑल हार्वर्ड स्टूडेंट्स एंड देयर एलुमनाई. ठीक है. स्टूडेंट्स एंड एक्स स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए ही क्रिएटेड अ पोर्टल और अ नेटवर्क. ठीक है. जो कि लेटर स्टेजेस में जाके डेवलप करके बन गया फेसबुक. एंड टुडे फेसबुक इज the biggest platform for social connection in the world. More than half a world, 7 अरब लोग हैं शायद इस पृथ्वी पे. 3 अरब से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं फेसबुक के. ठीक है. So this is the power of the social networking. Do anybody knows Elon Musk? Yes sir. Founder of Tesla. Yes. Anything more about Elon Musk? Sir, He's the world world second second richest man. billionaire. सर स्पेस की भी सर फाउंडर है ये. किसके? SpaceX. SpaceX के फाउंडर है. स्पेस. और बताइए. Recently, he was the world's richest person, but he is down by Jeff Bezos again. No issues. और बताइए. He is one of the ideal, ठीक है, ideal example of an entrepreneur. And आप प्रोटोटाइप की बात करें तो प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइप टेस्टिंग, he is the best person to be talked of. ठीक है. He creates a requirement, he addresses a requirement. Elon Musk was a student, I think he was in Harvard itself. Harvard उन्होंने join किया था PhD करने के लिए, but he dropped it. ठीक है. Then he created a portal known as PayPal. PayPal later on was a predecessor of Maestro. ठीक है. तो PayPal के क्रिएटर थे वो. PayPal एक पेमेंट पोर्टल है. उसके बाद उन्होंने ड्रीम किया कि SpaceX बनाएंगे. ठीक है. He was the first individual to launch a spacecraft to space. मतलब नासा जो नहीं कर पा रही थी वो कर दिए थे पहले ही उनके. ठीक है. तो ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के आइडियाज ही उन्हीं के थे. तो ही इज एन इन्वेंटर. तो जितनी इनोवेटिव तरीके से वो ही वाज creating requirement, he creates requirement and addresses many requirements of the world. ठीक है. उन्होंने ये किया है. उसका साइट फॉलो करिएगा, अगर ट्विटर पे उसको फॉलो किया आपको बहुत सारे नए आइडियाज मिलेंगे what he is doing actually. ठीक है. एनीथिंग और किसी के पास कोई एग्जांपल है स्टार्टअप रिलेटेड? एनीथिंग? अभी तक दीपिका नहीं बोली है. दीपिका, गैलेक्सी F41. हर्षिता बोलिए. Any Yes, sir. example?
मैम आपको कोई स्टार्टअप का आइडिया? नो सर, अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। प्रोटोटाइप, कोई प्रोटोटाइप या कोई मॉडल वगैरह जिसको आप प्रोटोटाइप लॉन्च कर सकते? अच्छा, चुंबक के बारे में कोई जानता है? चुंबक? Yes, I know. Yes, हाँ? sir. चुंबक क्या चीज है? Magnet है. So it's a magnet. That's what you say, magnet. So it's a Good. magnet. नहीं, चुंबक इज अ मैग्नेट, गुड, बट आज के सेशन के कॉन्टेक्स्ट में चुंबक के बारे में कोई जानेगा? कोई बता सकता है? Yes, sir. चुंबक अब सिर्फ चुंबक नहीं रह गया, वो हर जगह यूज होता है। क्या होता है? मैग्नेट। किसके लिए यूज होता है? सर जैसे कि हम लोग नेक बैंड पहनते हैं, वो ईयरफोन्स होते हैं, उसमें यूज होता है। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लोग उसमें यूज करते हैं। तो चुंबक सिर्फ छोटी सी सुनो, चीज से नहीं रह गए। दीदी आप लोग गूगल नहीं करते हो? क्या क्या? मेनली ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज होता है चुंबक वगैरह। आप, अच्छा ठीक है, गुड। आप गूगल पे चुंबक टाइप करना, देखना क्या मिलेगा। आप जो बता रहे हो ना, एक भी वो नहीं मिलेगा, ठीक है? ऑल आर करेक्ट, नो इश्यूज, ठीक है? मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। चुंबक एक स्टार्टअप है। सर कैन आई? यस मैम। It's a digital Sir, pattern. it is a thing which attract all metals. यस यस, ठीक है, दैट्स चुंबक या मैग्नेट, आप सब कोई ठीक बोले हो, बट इफ यू टाइप ऑन गूगल चुंबक, जो फर्स्ट थिंग आएगा वो है एक स्टार्टअप है जिसका नाम है चुंबक, व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय अ हस्बैंड एंड वाइफ इन बैंगलोर। उस स्टार्टअप का खासियत ये है, जो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लड़कियों का, इसलिए मैं आपको बोला हूँ, वो बहुत ही अट्रैक्टिव वो बनाती है, ठीक है? गिफ्ट्स एंड एक्सेसरीज, वो सारे टेलर मेड प्रोडक्ट्स बनाती है। गूगल में आप चुंबक टाइप करोगे, यस सर। मिला? Especially watches. Yes, Watches. sir. उनकी घड़ी और बैग्स बहुत फेमस है। हाँ, तो Yes, sir. so this was since the forum is of So all yes, sir, girls, I have. talked about this Chumbak. So Chumbak is basically a startup which focus, जैसे आप बोले ना, हमेशा नया आइडिया चाहिए नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया है कि उनका एक पर्टिकुलर फॉर्म है, वो क्या करते हैं, जितने वाइब्रेंट कलर्स, उनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मोर वाइब्रेंट यूजिंग ब्राइट कलर्स। तो उनके काफी सारे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वॉचेस, हैंड बैग्स एंड ऑल। तो इसको लेके उन्होंने किया, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, एंड दे हैव इन फैक्ट गॉट मोर देन 500 करोड़ ऑफ सीड फंडिंग। सीड फंडिंग बोले तो उन्होंने अगेन एंजल इन्वेस्टर से ही फंडिंग वगैरह अरेंज किया है, तो दे हैव गॉट दिस फंडिंग। सेकंड एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ठीक है? मैं आता हूं उसके लिए। तो जब आप स्टार्टअप लॉन्च करोगे, ठीक है, या स्टार्टअप का इनफैक्ट यू प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो सपोर्टिंग यू इन दिस इनिशिएटिव फॉर योर एक्टिविटीज। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, स्टार्टअप फाउंडेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके साथ साथ जितने IITs हैं, NITs हैं, इन सब का एक इनोवेशन या इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि आपके स्टार्टअप को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करने के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ये होम पेज है स्टार्टअप इंडिया फाउंडेशन का, ठीक है? इंडिया का, ये जो नरेंद्र मोदी जी लॉन्च किए हैं, ये वाला, क्लियर? तो ये एक प्लेटफॉर्म है। इसके साथ गवर्नमेंट आपको मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है 5 लाख रुपए का, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। मतलब आप में से कोई भी ये 5 लाख रुपए का लोन लेके अपने प्रोडक्ट प्रोटोटाइप को प्रोडक्ट में बदल सकता है, ठीक है? ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है हर एक एंटरप्रेन्योर को जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये लोन लेके अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? तो चुंबक मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया, चुंबक में कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है, कोई नया कुछ नहीं किया है। उसने क्या किया है, आपको अट्रैक्टिव कलर्स का वो एक प्रोडक्ट बनाता है, सुंदर सुंदर लगता है काफी देखने में, उसको बेचता है, ठीक है? और मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, हम सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को काट के फेंक देते हैं, मतलब वेस्ट होता है, हम लोग पोल्यूशन करते हैं ना? यस सर। देयर इज अ स्टार्टअप इन जयपुर, वो क्या कर रहा है, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स को, जितने PVC बॉटल्स हैं, इसको पतले पतले थ्रेड्स में काट देता है, ठीक है? ये आप घर में भी कर सकते हैं।
and using that strings they are creating bags, mattresses and all, and they're quite longeable. ठीक है, आप ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो. दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ हाउ टू डू अ गुड स्टार्टअप. ठीक है, ये कोई भी कर सकता है. कोल्ड ड्रिंक का बॉटल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसको काट के एक दो चीज आप घर में बना के देखो एंड देन यू कैन डू दिस. ये क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रो कर रही है. देन एक और इंडस्ट्री है आपका स्क्रैप सेलिंग इंडस्ट्री. ठीक है, शहर के बाहर इंसेंटिव्स, अगर आप लोग नैनी आए हैं तो ठीक है, नैनी में पुराने ब्रिज के पास में आप एक गंगा प्रदूषण नियंत्रण केंद्र है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में इंसिनरेटर्स बैठाया है जो आपका अगेन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल करता है. दिस इज अगेन अ वेरी बिग इंडस्ट्री. ठीक है, मेटल कैन्स को सेपरेट करता है. मेटल कैन से वो दे डू अ स्टार्टअप, दे क्रिएट प्रोडक्ट्स. फिर जो पॉली बैग्स निकलते हैं, पॉली बैग से जो मेटल्स निकलते हैं, जो नॉन फेरस मेटल्स है, इन सब का एक अच्छा सेटअप है वो. अगर इफ यू गेट टाइम यू कैन विजिट दैट प्लेस. यू विल, मतलब आपको बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे वहां से. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटोटाइप क्रिएशन. जब आप करोगे तो और आप प्रोडक्ट तक पहुंचोगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना है. ठीक है, इट कैन बी कि यू नीड टू हायर योर टीम अगर जरूरत पड़े तो. इफ यू आर अ इंडिविजुअल फाउंडर तो यू कैन डू दैट आल्सो, बट इफ यू नीड अ टीम यू कैन डू दैट. देन यू नीड सम लीगल कंसल्टेंसी, लाइक आपको अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कराना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. आपको वो अगर पेटेंट है तो पेटेंट लेना होगा. ठीक है, देन आपको उसके सप्लाईज अरेंज करना पड़ेगा. लाइक व्हेन वी वर प्लानिंग फॉर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट, हमको अपना कुछ मटेरियल चाइना से भी मंगाना पड़ रहा था. तो ये सारा चीज आपको एड्रेस करना है. देन यू हैव टू एड्रेस योर लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन, दैट इज जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है आपका, तो आपको RoHS कंप्लायंस होना चाहिए. ठीक है, अगर आप CFL वगैरह बनाते हैं तो CFL का भी फिर है कि आपका नॉन मर्क्यूरिक वो कंटेंट होना चाहिए, तो इसका एक सर्टिफिकेशन लगता है. ठीक है, जैसे आप ये जैसे हैंडबैग वगैरह वाला जो इंडस्ट्री है, उसके लिए आपको ISI स्टैंडर्ड चाहिए, ISO सर्टिफिकेशन चाहिए, ये लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, देन आपको अरेंज करना पड़ेगा अपना वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज अगेन योर, आप फंड करो, खुद करो या कुछ भी करो. वर्किंग कैपिटल मतलब मिनिमम आपको 3 से 4 महीने का, आप अगर मान लो आपके पास 4 महीने तक कोई सेल नहीं आए, उसके लिए आप मिनिमम कितना पैसा लगेगा, दैट इज उतना आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा. देन अगेन मार्केटिंग, सेल्स और जो ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस है, ये सब आपको अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ यू कम टू प्रोटोटाइप वैलिडेशन. अच्छा, प्रोटोटाइप वैलिडेशन स्टार्ट करने से पहले डू यू नो डिजाइन थिंकिंग? Anybody has an idea what is design thinking? I think it has been discussed in your previous session. What is design thinking? Anybody? Making a model of any idea. No. Or कुछ? Anybody? Sir, it is a strategic and a practical process by which design concepts are developed. Okay, quite good. So basically, Tim Brown is the person who conceptualized design thinking. ठीक है, इनका जो अपना स्टार्टअप है, देयर तो उन्होंने ये आइडिया डिजाइन थिंकिंग का दिया. डिजाइन थिंकिंग इज बेसिकली, ठीक है, आप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आप कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम लो, वेदर इट्स मतलब प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, एनी प्रॉब्लम, you solve that problem using the concepts of design. मतलब आप as a designer सोच के, एक डिजाइनर अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन करता है, उसके लिए जो चीजें वो सोचता है, ठीक है, आप भी वैसे ही वो सारी चीजें सोच के you design you propose your product. This is basically a design thinker's job. So Tim Brown is the one who coined this term design thinking. ठीक है,
तो ही ओनली ये उन्हीं के स्टेजेस है कि प्रोटोटाइप वैलिडेशन के लिए क्या क्या करना है, विल डिस्कस नाउ, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट वन थिंग कि आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो यू मस्ट नॉट गेट इमोशनली अटैच्ड विद द प्रोडक्ट, ठीक है। If you get attached with the product, your product will never be successful because you will not be able to admit the demerits of your product. You will fail to admit the demerits क्योंकि सबको अपना चीज अच्छा लगता है ना। That could be one of the reason for failure of Nokia. Nokia के जो handsets थे, they didn't thought कि yes, they were too much attached with that product. Yes, कि it's a foolproof product. They thought they didn't thought for any innovation. That is why वो industry उनकी खत्म हो गई once the multimedia phones took over, ठीक है। Let's get back to the topic. So prototype validation. तो prototype validation करना मतलब आपने अपना prototype बना लिया. Now you before launching that prototype into a final product, you need to validate कि आप इसको decide करोगे whether it is suitable, whether it is tested and suitable for the industry. Industry और market के लिए वो ready है कि नहीं, ये देखेंगे। तो फॉर दैट आपको यू नीड टू डू अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कोई बताएगा क्या चीज है? एनीबॉडी? I think so they won't be able to tell you about hypothesis testing. They're still not into the actual research work, so maybe they are not well acquainted with this hypothesis word. No issue. हाइपोथेसिस इज बेसिकली आप खुद से एक डेफिनेट आप एक डिसाइड करते हो कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, एक या हिंदी बोले एक मनगढ़ंत एक विचार बनाते हो कि ऐसा होगा कि मान लो आप उसमें डिसाइड करते हो कि मान लीजिए आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब आप एक डिसाइड कर लो कि ये कारण से आपका प्रोडक्ट फेल करेगा, ठीक है। मान लो मैंने मेरे पास एक मल्टीमीडिया फोन है, मान लीजिए इसका इन्वेंशन मैंने खुद किया है। अब इस फोन को मैं एक बार टेस्ट करूंगा, मैं एक बार डिसाइड करूंगा ये पैरामीटर पे ये फेल करेगा। सपोज मैं मान लूंगा इसको पानी में डाल दूंगा तो ये जल जाएगा, ठीक है। इसको पटक दूंगा तो इसका स्क्रीन टूट जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बहुत पावरफुल कोई ऐप डाल दूंगा तो देन इट विल स्टार्ट हैंगिंग, ठीक है। इसको मैं आग में चलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा। तो ये सारे डिफिकल्ट पैरामीटर्स है, इन सब पे मैंने इसको टेस्ट करना है। और भी बाकी सारे, ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोला मैंने, और भी इस क्राइटेरिया से आप इसको टेस्ट करोगे, ठीक है। मतलब आप अपने प्रोटोटाइप को के लिए टेस्ट करने के क्राइटेरिया बनाओगे, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट कि आपका कब क्या आपका प्रोडक्ट जो फेल होता है उसके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कराओगे, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आप ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, स्टैटिस्टिकली भी कर सकते हो, व्हिच यू विल लर्न ऑफ कोर्स इन योर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो वो पढ़ाया जाएगा। सेकंड थिंग इज कि हाँ बोलिए सर। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, ये फेलियर के लिए कि आप किस केस पे आपको आपका प्रोडक्ट फेल होगा, ठीक है। आप वो क्राइटेरिया बनाइए, देन यू टेस्ट योर प्रोडक्ट। ओके सर, ठीक है। जैसे अच्छा एक बात बताइए, ऑर्कुट यूज किए थे आप लोग? ऑर्कुट ARKUT ऑर्कुट यूज किया आप लोगों ने? नो सर। नो सर। ठीक है। Why is a digital camera better than a Kodak camera, a conventional camera? रील नहीं डालना पड़ता है उसमें, एंड एज इन आई एम सो सॉरी, रील नहीं डालना पड़ता। Good. Yes. और तो इसमें बेटर क्वालिटी HD पिक्चर्स। ओके ग्रेट। और सर अभी मतलब जो भी हम कैमरा से पिक्चर्स क्लिक करते वो जो भी हमें मन है हम अपने विश के अकॉर्डिंग फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पहले रील वाले कैमरा होते थे उसमें हमें सिलेक्शन का कोई मतलब चॉइस नहीं था, उसमें हमें पूरे फोटोज को निकलवाना ही पड़ता था। गुड। ये सारा आपको ये डिजिटल कैमरा एडवांटेज दिया था, ठीक है।
यही कारण था कि वो एडिटिंग एडिटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये जो रिक्वायरमेंट थी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी, मतलब पुराने कैमरे, दैट इज प्रोडक्ट वाज फेल्ड। ये कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स को वो एड्रेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जो कि ये एड्रेस किया है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू आर डूइंग अ प्रोटोटाइप वैलिडेशन यू नीड टू नो व्हाट यूजर प्रॉब्लम यू विल बी सॉल्विंग। यूजर को क्या प्रॉब्लम होगा you need to solve. It may be there you don't know how to solve the problem, but at least you must know what are the problems. ठीक है, what are the problems? If you identify, you can of course address how to solve the problem. जैसे अभी एक चल रहा है कॉन्सेप्ट कि मार्स पे हमको कॉलोनी बसानी है, पता है ना आप लोगों को? मार्स पे हमें कॉलोनी बसानी है, चंद्रमा पे जमीन बिक चुकी है अभी तक की, इस आपको पता है ना? यस सर। हाँ, बट ये क्या है कि हमें पता है कि फ्यूचर में जाके धरती पे जगह नहीं बचेगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम कि वी विल फेस लैंड क्राइसिस ऑन अर्थ। तो उसका क्या है कि हमको वहां जाके रहना है, बट क्या किसी के पास अभी तक कोई आइडिया है कि हाउ विल वी सॉल्व द प्रॉब्लम? वी आर येट टू डेवलप दैट आइडिया, करेक्ट? अग्रीड ना? वी आर येट टू डेवलप दैट प्रॉब्लम। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट to know what is the problem than how to solve the problem, because how you will know with the due course of time, but what is the problem that needs to be addressed before it. Then you have to do exploratory research, ठीक है। ये करना, यही अगेन आपके अपने टॉपिक पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि what is requirement, क्या कमी है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज you must know what you are building on, ठीक है, कि आप क्या बनाने वाले हो। इट कैन बी देयर कि आप जो बना रहे हो वो क्या बना रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। मे बी कि आप जो कर रहे हो वो इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस, बट यू एटलीस्ट मस्ट नो कि व्हाट यू आर बिल्डिंग, ठीक है। उसके लिए इट विल बी हेल्पफुल। आप इंडी यंग्स का मेंटल मॉडल है, ये एक बार देखिएगा, काफी सारी चीजें हैं इसमें, ये यू मे गो अलोंग दैट, यू मे स्टडी दैट। उसके बहुत सारे मेंटल मॉडल्स प्रिपेयर करने के बहुत सारी टेक्निक्स दिया है, काफी अच्छी चीज है वो, एक बार देखना आप लोग, इंडी यंग्स मेंटल मॉडल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि डू गेट अ डिजाइन फास्टर थ्रू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इट इज इंपॉर्टेंट कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द प्रोडक्ट, don't get emotionally attached in the product, otherwise you will lose the early niche opportunity, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका देखेगा कि उसका कॉस्ट काफी ज्यादा रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे गिर जाता है प्राइस, ठीक है। तो जो अर्ली बर्ड होता है, जो सबसे पहले आता है, ठीक है, तो those people capture the market at the first। तो इसीलिए प्रोटोटाइप टेस्टिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, यू हैव टू बी क्विक इनफ कि आपका प्रोडक्ट बन के उसको यू आर रेडी टू लॉन्च इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ड्यूरिंग टेस्टिंग फाइंड आउट व्हाट पीपल डू टू मैच योर हाइपोथेसिस, ठीक है, बिकॉज कोई भी हाँ बोलिए सर। जब पहले प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो इनिशियल स्टेज पे रहता है, तो जब वो इनिशियल स्टेज पे रहता है तो वो प्रोडक्ट को की कॉपी जो अदर कंपनीज रहती हैं उस प्रोडक्ट की कॉपी करना शुरू कर देती है, तो उसकी ढेर सारी कॉपीज मार्केट में आ जाती है, इसलिए उसका मार्केट प्राइस लो हो जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो उसका यस सर। करेक्ट। नहीं तो इमीडिएटली कोई कर नहीं पाता ना ये इमीडिएटली, हाँ ये बात आप सही बोले, इमीडिएटली कोई कर नहीं पाता, इसीलिए उनका प्राइस हाई रहता है। वो वही है, दैट इज सिंपली अर्ली बर्ड ऑफर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो नैनी में कंपनी है, ये आपका जब फर्स्ट टाइम इंडिया में आपका वो हुआ था, अभी तो पहले जब हम लोग छोटे थे तब टेलीफोन्स आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स पे, तार पे जाता था, अभी ये ऑप्टिकल फाइबर पे जाता था। तो पहले जो सिग्नल्स था उसका जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन था उसके लिए जो these companies were the first to launch those products। तो इन्होंने पहले स्टेजेस में वो जो सेल करते थे, मतलब एक सिंगल यूनिट का जो प्राइस रखते थे, अभी के कंपैरिजन में दैट प्राइस इज 64 टाइम्स लेसर देन दैट प्राइस। तो इस रेंज का डिफरेंस आता है, आया था। कोई गाड़ी ले लीजिए ना,
कोई गाड़ी वगैरह कोई सॉफ्टवेयर ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल सॉफ्टवेयर है। और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो अगर जब इनिशियली लॉन्च हुआ था 17,000 रुपए करके था, आज वो 4,000 5,000 में मिल जाएगा आपको। यस सर। दिस इज ठीक है। सेकेंड थिंग टू आप फाइंड आउट व्हाट पीपल डू, बिकॉज योर कस्टमर विल नॉट मेक एनी एफर्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए वो कोई एफर्ट नहीं डालेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोडक्ट इज नॉट मीटिंग योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, मतलब आपके कस्टमर को क्या चाहिए और व्हाट हाउ योर हाइपोथेसिस इज लैकिंग बिहाइंड दैट। एंड थर्ड, एलिमिनेट एंड डिलीट व्हिच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिसमें जो आपके प्रोडक्ट में इररिलेवेंट है, जो उसको मैच नहीं करता है, उसको आप रिमूव करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले गाड़ियों में सीडी प्लेयर आता था ना, सबसे पहले कैसेट प्लेयर आता था, फिर सीडी प्लेयर आता था। अभी वो सब नॉट रिक्वायर्ड है, इसलिए उसको एलिमिनेट कर दिया। इट हैड डायरेक्टली दे प्रोवाइड यू यूएसबी, अब तो यूएसबी भी हट गया है। नाउ यू हैव ओनली अ ब्लूटूथ कनेक्शन। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। जैसे आज के दिन में आपके पास इतना कुछ, एक कंप्यूटर जो होता है आपको इतना बड़ा डिब्बा लेना पड़ता है, सीपीयू लेना पड़ता है, मॉनिटर लेना पड़ता है। नाउ यू हैव लैपटॉप। फ्यूचर कंप्यूटर्स विल नॉट बी लाइक दिस, एवरीथिंग विल बी ऑन द क्लाउड। आपको सब कुछ क्लाउड में रहेगा। यू विल ओनली हैव समथिंग टू प्रोजेक्ट ऑन। जैसे एक प्रोजेक्टर रहेगा, आप उसको कहीं भी एक स्क्रीन चाहिए, बस आपको एक स्क्रीन मिलेगा, सब कुछ जैसे आपका मोबाइल में है। यू विल गेट एन एक्सेस and everything will be controlled and administered through cloud. तो जो एलिमिनेट करना है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं, उसको एलिमिनेट करना है। पहले गाड़ियां भारी होती थी, ठीक है, चेसिस भारी होता था। अब क्या है, उसमें VAVE करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू अवेलेबिलिटी। इसको करने से क्या करते हैं कि उसमें जो अनवांटेड वेट है, अनवांटेड प्रोडक्ट है, उसको दे कर्व आउट, उसको माइनस करते जाते हैं, which helps them to make the products lighter, more sturdy and more powerful to be launched. It's more cost effective. Next, test your behavior, not opinions. ठीक है, मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है, अपने भाई से पूछूंगा तो वो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग के साथ जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब मैं अपनी सिस्टर से पूछूंगा कि कैसा, वो तो मुझे तारीफ ही करेगी, लेकिन असली फीडबैक तो मुझे आपसे मिलेगा ना, है ना। तो दिस इज द थिंग, यू हैव टू डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू गो विद द ओपिनियंस, यू हैव टू गो विद द बिहेवियर, ऑडियंस रेस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। जैसे हम लोग जब नए आए थे, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम अवेलेबल था हमारे पास, जूम अवेलेबल था, ये वेबएक्स अवेलेबल था, ठीक है। देन एट दैट टाइम बीच में हल्ला उड़ा था कि जूम में हैकिंग हो जाता है, जूम में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जूम में कंप्यूटर क्रैश कर जाता है। दीज वर ऑल ओपिनियंस, but finally if you talk today, Zoom is the market leader in this online meeting portal, ठीक है। तो don't go with the opinions but go with the behaviors, go with the stats, ठीक है। use navigation elements, means do cross functional research. आप try to go beyond a single domain, topographically analyze करो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। For example, महिंद्रा थार, ठीक है, महिंद्रा थार कार का नाम सुना है? नो सर। कोई जीप जानते हो आप? जीप? यस सर। यस सर। फिर रॉयल एनफील्ड, बुलेट, ये सब गाड़ीज, यस सर। हाँ, गुड। These गाड़ीज, ये जो व्हीकल्स है, they were exclusively launched for defense products, ठीक है, because of the design and sturdiness, but later course of time they have been, क्या कहते हैं उसको, क्रॉस फंक्शनली उसको हर जगह इंप्लीमेंट किया, they are great commercial successes। अभी वो हर जगह चल रहे, तो अपने प्रोडक्ट को हर डेमोग्राफी, हर टोपोग्राफिकली, हर एक डायमेंशन पे उसको टेस्ट करना है, ठीक है। वेदर इट जेंडर स्पेसिफिक है कि नहीं, या कुछ जैसे कलर, सिंपल एक कलर का एग्जांपल देंगे। आपको पता है एक मार्केट में एक फैक्टर चलता है, पिंक फैक्टर। पिंक फैक्टर इज pink, PINK, pink factor is a marketing term very much popular in the industry। ये क्या चीज है, बेसिकली जो
products launched exclusively for females, ठीक है, they are charged much higher than what it is charged for a male product. Sir, I have an example. हाँ प्लीज बताइए. सर मेरे पापा जहाँ पे जॉब करते हैं, मतलब वो सेल्स मैनेजर है, तो वो प्यारगो जो ऑटो होती है 3 व्हीलर्स वाली, सर बीच में उन्होंने पिंक निकाला था फॉर लेडीज ओनली. सो उसका चार्ज अकॉर्डिंग टू अदर ऑटो से कुछ ज्यादा था, बट वो ज्यादा बिकी नहीं, इस वजह से उसे बंद कर दिया गया. ओके, इट हो सकता है पियागो सक्सेसफुल नहीं है, बट ये व्हाई Yes, शुड sir, बॉयज हैव ऑल द up- फन, ये सब लॉन्च कर this position similar product, but if it is sold for the female gender, ठीक है, they are charged quite a high than the other side, because this is basically one of the marketing strategies. So you need to explore your product as per with all the relevant factors, age group, ठीक है. जैसे पहले हम लोग जब छोटे थे तब हॉर्लिक्स एक ही आता था, अभी ये चाइल्ड हॉर्लिक्स, वुमेन हॉर्लिक्स, ओल्ड एज हॉर्लिक्स सब आता है, ठीक है. So these are simply means refining your marketing strategies. Then it is important to stay lean. Lean manufacturing एक concept है, ठीक है, which was launched by Toyota Management System. So lean manufacturing basically focuses on कि आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, that should be with least junk, which should be your process must be very much optimized. आपका जो भी process हो बहुत ही optimized तरीके से होना चाहिए. Means आपका जो raw material है, raw material से जो आपका product convert होगा, that should take minimum time, minimum resources. This is lean. ठीक है. आप जब अपना prototype design करो, that should be with the concept of lean. Lean के साथ चलना है आपको, minimum मतलब resources minimum रख के अपना product बनाना है, whether it's manpower or your items or anything. ठीक है. वही again your prototype validation should be cross functional, should be user focused, कि आपका target audience कौन है, आपका intended वो कौन है. Suppose ये जो session हम लोग आज discuss कर रहे हैं, अगर आप ही लोग PhD students होते हैं या industry होता है, then my context of organization is different, then my examples would have been different, because it should be as per their requirement. So your product should be you must know what your product is going to address. आपका टारगेट कस्टमर कौन है, ठीक है, आपको टारगेट कस्टमर कौन है, ये लेके आपको काम करना है. जैसे हमको अब सूट बनाना है, सूट कपड़ों की इंडस्ट्री लगानी है, तो अगर हमको ओल्ड एज लोगों के लिए कपड़े बनाने, तो हम वाइब्रेंट कलर नहीं चूज करेंगे, हम लाइट कलर चूज करेंगे. Yes, तो sir. आपको पता है आपका कस्टमर कौन है, देन अकॉर्डिंगली यू डिजाइन. So according to customer. करेक्ट. कस्टमर नीड नहीं, हाँ, it's not exactly customer need, because color can be anything. हाँ, कह सकते So हो. not only color but all the all of Anything. that. Yes, customer focus होना चाहिए basically. Design with user in mind, you will build a useful, usable and a delightful product. हाँ, जब भी आप कुछ totally user के context में करोगे, तो it's definitely a very useful and a usable product. For example, सबसे अच्छा example है Microsoft Office, PowerPoint, हम लोग यूज करते हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. PowerPoint is so user friendly. अच्छा, इसके अलावा प्रेजेंटेशन देने का और कोई सॉफ्टवेयर आपको पता है? No. There are many more examples like Micromedia Flash Player. ऐसे बहुत सारे examples हैं, but they are not known, they are not so popular. उसका सबसे बड़ा reason यही है कि they are not so user friendly. You need to design, you need to create a product which must be user friendly. तो ही वो कारण होगा success का. When a product would fail, definitely fail if it is not user friendly. सर अदर एप्स स्टैंड नहीं कर पा रहे थे मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सामने. लिनक्स का नाम सुने हैं? लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. यस सर, लिनक्स तो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट हार्डली पीपल यूज इट. एवरीबॉडी यूजेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. इट्स बिकॉज़ ऑफ देयर यूजर फ्रेंडली नेचर. नेक्स्ट, ये हमारे प्रेजेंटेशन के स्कोप के बियॉन्ड है, बट जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो, ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टूल है, DFMEA, PFMEA और FMEA. ठीक है,
डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है, ये हम करते हैं। कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट है जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, उसका डिजाइन फेलियर हम एनालिसिस करेंगे। आपको याद होगा सेलो ग्रिपर पेन थी, यूज करते थे हम लोग सेलो ग्रिपर पेन, ठीक है। जब सेलो ग्रिपर नया नया लॉन्च हुआ था, उसका बॉल टूट जाता था, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसका सामने वाला जो बॉल था वो टूट जाता था। यस सर। वो प्रॉब्लम उन्होंने DFMEA से सॉल्व किया, ठीक है। और एग्जांपल दें हम, छोटा हाथी जानते हैं ना, टाटा छोटा हाथी। टाटा छोटा हाथी जब लॉन्च हुआ था तो काफी आग लगती थी, आए दिन सुनते थे टाटा छोटा हाथी में आग लग गई है, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ा न्यूज था। उसके वजह से ऐसा हुआ था कि वो कंपनी ने अपने सारे व्हीकल्स विड्रॉ किए थे, टाटा एस के सारे व्हीकल्स विड्रॉ किए थे उस समय के लिए। तो उसमें उसका PFMEA वीक था। इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि सारे डिजाइन फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसमें। हाँ, ये देखिए, जैसे ये है एग्जांपल, ये पेन का ही एग्जांपल है, एक बॉल पॉइंट पेन का एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें पेन टिप क्या है, पेन का जो बॉल है उससे क्या होता है कि वो ठीक से लिख नहीं पा रहा है। तो उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि जब पेन से आप लिखते हो, जब पेपर में फ्रिक्शन होता है, देन इट शुड सप्लाई सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंक। तो उसका फेलियर का कारण क्या हो सकता है, देयर माइट बी नॉट इनफ इंक अवेलेबल। उसका रीजन क्या हो सकता है कि देयर में बी हैवी प्रेशर व्हाइल राइटिंग। तो देयर कैन बी पॉसिबल कॉजेज ऑफ फेलियर। पहला, बॉल डायमीटर ज्यादा हो सकता है, देन पेन एंगल गलत हो सकता है, देन इनफ प्रेशर गलत होता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज, पेन एंगल लिखने के समय होता है वो कस्टमर के हाथ में है, ठीक है। उसी तरह पेन का प्रेशर वो भी कस्टमर के हाथ में है, वो डिसाइड करेगा वो कितने प्रेशर से लिख रहा है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में क्या था, बॉल का डायमीटर वो बड़ा या कम कर सकते। तो उसको बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया, फाइनली उसके बेसिस पे दे डिजाइन द न्यू बॉल एंड दैट सॉल्व द प्रॉब्लम फाइनली। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ DFMEA। तो DFMEA, PFMEA ये सब करना पड़ता है फॉर फाइनल प्रोटोटाइप वैलिडेशन। तो हाँ, and the last part of our story is we'll tell you some good success stories of the startup. Your story के बारे में कोई जानता है? नो सर। भुक्खड़? नो सर। दवाई ले लो, ठीक है, मैं दवाई ले लो से शुरू करता हूँ। दवाई ले लो एक स्टार्टअप है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये डोर स्टेप दवाई डिलीवर करता था, ठीक है। ये बनारस में ITBHU में ये कंपनी शुरू हुई, कुछ MBA स्टूडेंट्स ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी, ठीक है। ये क्या करती थी, आपके घर घर जाके आपको दवाई डिलीवर करती थी और आपको जेनेरिक मेडिसिन का भी ऑप्शन देती थी कि आप अपना प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करें, आपको अगर जेनेरिक चाहिए जेनेरिक और अगर स्पेसिफिक चाहिए तो स्पेसिफिक मेडिसिन मिलेगा विद 10% डिस्काउंट एट योर डोर स्टेप, ठीक है। दिस वाज लॉन्च बाय आदित्य अग्रवाल। लेटर ऑन टाइम ये हुआ क्या, ये कंपनी 1mg को सोल्ड हो गई। लास्ट टू लास्ट ईयर ये कंपनी 1mg को ये कंपनी सोल्ड हो गई थी, ठीक है। तो ये स्टार्टअप भी एक्वायर किया जाता है रेगुलर, जैसे व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था फेसबुक में, ठीक है। नेक्स्ट इज भुक्खड़। भुक्खड़ लॉन्च हुई थी आपका नेल्सार में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। कुछ लड़कों ने मिलकर ये कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर किया। ये बेसिकली है कि कुछ आपके वहां का जो मेस का खाना था, दैट वाज पैथेटिक। मेस का खाना हर जगह ऐसा ही होता है, तो बट दीस पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग यू हेल्दी फूड, हेल्दी नॉन ऑयली फूड ये प्रोवाइड करना शुरू किया है। भुक्खड़ इज रनिंग योर डोर स्टेप किचन ऑलमोस्ट इन एंटायर ये बैंगलोर एंड अदर बैंगलोर, पुणे एंड अदर सम ऑफ द एरियाज। तो इनका खासियत ये है कि दे प्रोवाइड यू हेल्दी मील्स, मतलब अभी ये पैकेट ड्रॉप आउट मोड पे चलते हैं कि आप इनको ऑर्डर कर दोगे तो दे विल प्रोवाइड यू हेल्दी स्नैक्स एंड लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ये सारा चीजें प्रोवाइड करते हैं। इनका अभी कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, बट सिर्फ इसी पे ये चल रहा है।
नेक्स्ट वन इज योर स्टोरी. योर स्टोरी ने क्या किया है? श्रद्धा शर्मा. हाँ, श्रद्धा शर्मा, हाँ, योर स्टोरी की CEO. यस यस. तो योर स्टोरी टेल्स योर स्टोरी. ये सारे स्टार्टअप्स की स्टोरी देती है. तो सी सच अ सिंपल आइडिया कि वो क्या करते हैं, दे कंटिन्यूअसली स्क्रॉल अराउंड द सोशल मीडिया एंड अदर आपका जितना एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या इवेंट्स होता है, एंड दे राइट अ स्टोरी. मेरा भी इनफैक्ट एक स्टोरी है योर स्टोरी पे. So they will cover your story. They will cover your story and they will launch there. ये and इसी पे ये startup चल ही रहा है. So this is the beauty. So I'll tell you a little bit about my startup. In 2010, we created a product known as SmartRun, Smart Transmission Remote Accessing Network. Okay, that product was selected for Intel India Embedded Challenge. Okay, for the finals. It was also there that government of UP and Indian Telephone Industries also planned for seed funding of our product, but there were some lackings. Which because we fall into we were unfortunate that we fell into the 94% of the startup. So that product is not today commercially available, but yes, the concept has been literally taken and implemented. ये जो prepaid electricity का concept है ना, this prepaid electricity is basically one of the part of SmartRun. In 2010 only we prepared it, कि जिसमें आपको मोबाइल रिचार्ज जैसे आप करते हो, मोबाइल रिचार्ज करके योर इलेक्ट्रिसिटी गेट्स रिचार्ज. एंड सेकंड थिंग उस पार्ट में ये था कि वी वर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट. जैसे इंटरनेट में आपका क्या होता है, योर डेटा पैकेट्स ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क. ठीक है, जैसे आप जो हम बात कर रहे हैं, जो ये सिग्नल है, ये सिग्नल डेटा पैकेट बन जाता है. पैकेट्स की एक नेटवर्क आईडी रहते हैं एंड थ्रू दैट इट गेट्स ट्रैवल ओवर द ऑप्टिकल फाइबर लाइन. Similarly, we launched the product, launched electricity in terms of packetization. That is, we digitize the electricity. Electricity will be flowing through the transmission lines based on all digital packets. So this would have been. This is you might be hearing about smart grid technology. This is basically smart grid technology only. So. Herein this will help you in power theft, in addressing power thefts. Means this will minimize your power thefts to less than 1 or 2% levels. So this was our product. So this is all from me. So one more thing, आप ये नंबर देख पा रहे हैं सब कोई? तो ये नंबर में जितने सारे जीरो है, this is the total capital market capitalization of startups in the world. So I hope there will be few from this session who will be contributing to this number and will add more to the revenue of the nation if this number attracts you enough. So this is all from me. Thank you all. In case you have any questions or doubts, I think so. I don't think so. There should be any question or doubts. It was so elaborately explained, and I'm very sure, Ankur, you will be a great teacher. You are a great teacher. Thank you. So formally, to propose the vote of thanks, I call upon Dr. Ankita, who fortunately is the younger sister of Ankur Bhaduri. So Dr. Ankita, please come and propose a vote of thanks to Mr. Ankur Bhaduri, please. Before I end, thank you all for attending this session very patiently. I have given a form to Dr. Ankita. Please give your honest feedback, because that is what is required for creating a prototype, as we discussed throughout the house. So give your honest feedback so that we can work and improve upon our jobs in the future. Thank you. Now over to Ankita. Good afternoon, students, and good afternoon, Mr. Ankur Bhaduri. Thank you so much for this session, and it was very interactive.
and a long session and most awaited session of this No, year. not long session. I interrupt. Most awaited session of this ComEduFest. And I hope students enjoyed a lot from this session, and we hope to see you again Sure. in this meeting. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. So formally, we end this session. Thank you, Ankur. And as Ankita said, that we are hoping to meet you again and very soon with some new achievements to read out. I really felt very proud reading out your achievements. Thank you. Thank you so much, Ankur.